Ratan International Business School welcome you all for the Personality Development Workshop on Team Building. Geeta Ratan International Business School was established in the year 2004. GIBS is affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University, Delhi and is approved by All India Council for Technical Education, Ministry of HRD, Government of India for its management courses and Bar Council of India for its law courses. The institute conducts programs of MBA, MBA International Business, BBA, BBA LLB and BA LLB. The institute is accredited as A grade by NAC and assessed as category A plus by Joint Assessment Committee of Government of Delhi and IP University. The institute has been rated grade A by Academic Audit Cell of IP University consequently for the past 8 years. सुबह यार ये जोश है तो बना लिया है तुम्हारे तो डायरेक्टर साहब भी फौजी हैं, तुम फौजी डिसिप्लिन के रहने वाले हो, तो टीम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो फौज सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो फौज का होता है. But always remember one thing, there is nothing in the world without a team. Husband, wife, marriage, a team. Family, husband, wife, children, a team. Grandparents and grandchildren, a team. So team is something which is integral to a society. नाम आप कुछ भी दे दीजिए. आप में से किसी को चैलेंज करूं कि जॉब आप बेस्ट माउंटेनियर हो, माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओ, अकेले चढ़ सकते हो. यू नीड अ टीम. शेरपा चाहिए ना, एक ऑक्सीजन उठाएगा, एक तुम्हारा रक्सैक उठाएगा, एक तुम्हारे बूट्स उठाएगा, एक तुम्हारा एडिशनल इक्विपमेंट उठाएगा और फिर तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ोगे. नाम तुम्हारा होगा, राइट? लेकिन काम तो टीम ने किया ना, राइट? आज इन्फोसिस सारे एम्प्लॉइज को निकाल दो, सिर्फ मिस्टर नारायण मूर्ति को बिठा दो. कैन ही रन द कंपनी ऑन हिज ओन? ही कैन लीड द कंपनी, he can't run the team on his own. You need a team. So you may be, conquering the Mount Everest, or you may be a corporate honcho like Dr. Narayana Murthy, or you may be a business leader like Adani's or Ambani's. You always need a team. A team is required to deliver things. So I'll start with a very interesting video which I want to share with all of you. This video is about a ship cruise. Cruise सबको मालूम है? And एक क्रूज के ऊपर जो बिगेस्ट शिप क्रूज शिप आज की डेट में वर्ल्ड में है, approximately 6,000 passengers are there at one time and another 1,500 support staff. तो लगभग 7,000 के आसपास लोग एक शिप पे रहते हैं. And then there's a team which provides food for all the 7,000 people 3 times a day. आप इमेजिन करिए, मम्मी एक दिन घर पे नहीं होती है तो आपको समझ नहीं आता कि खाना कैसे मैनेज किया जाएगा. एंड हियर इज अ शिप विद 7,000 पीपल एंड अ टीम ऑफ 1,000 प्लस पीपल लुकिंग आफ्टर दो 6,000 पीपल, मैनेजिंग ओनली फूड. मैं बाकी फैसिलिटी मैनेजमेंट, रूम सर्विस उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ खाने की बात कर रहा हूं. कमाल का टीम वर्क चाहिए. 6,000 लोगों को हर बारी सुबह, दोपहर और शाम को खाना खिलाएंगे, और कुछ लोग तो 6-7 बारी भी खाना खाते. So you can imagine, मेरे साइज के लोग तो. So you can imagine the plight of the cooks, the chefs on the ship, और वो भी moving ship right in the middle of sea. अब तुम्हारे घर में केचप खत्म हो जाए तो तुम Zomato को फोन करो या शर्मा स्टोर, वर्मा स्टोर को फोन करो, भैया भेज दो. शिप में किसको कहोगे कि भैया केचप खत्म हो गया, सोया सॉस खत्म हो गई? You can't even ask anyone. So everything has to work to that detail और टीम वर्क कमाल का होना चाहिए. सारे शेफ अवेलेबल है. चाइनीज शेफ कह रहा है सर आज मेरा काम करने का मूड नहीं है, तो काम चलेगा क्या? यहाँ आज नीचे 12 लोगों का बर्थडे, 6,000 लोगों से 12 लोगों का बर्थडे हो सकता है? क्वाइट पॉसिबल. आज पेस्ट्री शेफ कहता सर आज रहने दो सर, आज मेरा ऑफ है, तो क्या 12 लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा? शिप्स पे तो ये बहुत चीजें सेलिब्रेट की जाती है बिकॉज दे वांट टू मेक एवरी इवेंट अ गाला इवेंट. तो किस तरह से एक टीम बिल्डिंग से, एक टीम वर्क से, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग वीडियो को मैं दिखाता हूँ. हैव अ लुक एट द वीडियो एंड देन we'll carry it forward. Just wait. So how does all this food make it to the plate? We'll start on the loading dock on a Saturday. This is turnaround day, when all new food is delivered to Deck 2. This is basically a place that you would not like to be on turnaround day when we are loading. It's busy, super busy. That's Jared. He orders food for the ship's 23 different restaurants. Every week, Jared's got a $1 million shopping budget. All of that is just for 7 days of food. Sometimes Jared will tweak his orders based on who's coming aboard.
More kids means more chicken fingers. That's how the operation runs. So we monitor it on a daily basis, what has been used, what has not been used, and then we adjust our orders accordingly. But by and large, being in Miami, having the same number of people, it's almost the same every cruise. On turnaround day, 30 trucks arrive at Miami Port. They're carrying 500 pallets worth of inventory, and all that has to be loaded onto the ship by 4 p.m. Any delay in our operation can hamper the sail away of the ship, which is again a big logistic requirement. Over 600,000 pounds of food and drinks are provisioned for just 1 week. 600,000 pounds of food for 1 week. Once on board, everything is moved along the ship's secret highway. This is I-95. Chefs take his notes and get cooking. Chefs can see a tally of each dish ordered up on screens. The system also keeps track of how much inventory is used. In the cold room, salads and appetizers like carpaccio come together. In the hot room, chefs dish out soups, sauces, sides, and mains. We have two kinds of chefs. Chefs will be on the line, called serving, planing up, and chefs on stove cooking. So everything we do is batch cooking. So basically, we put the steak there, we pass it over to the glass, we close on the glass, planing it out to the requested temperature. It means always that the guests are getting fresh food, and from an operational point of view, we don't have any overproduction. Finally, waiters deliver those dishes to hungry passengers out in main dining. Between the chefs, inventory crew, waiters, and dishwashers, it takes a team of 1,085 people to keep this massive operation going. Together, they cook nearly 11 million meals each year, and they're doing it all on a moving ship. The ship is rocket, where all the equipment is built to a ship rocket. Then in whatever moment maybe the ship moves, somebody can put one break in one trolley, and you see the trolley flying away. And half it. That's why all the cooks all No running away from your duty. There is no duty. 7 days you are working 24 hours. This is the kind of, but finally you have to deliver your best. You may be working with ICICI or Axis Bank or, Deloitte or, any big company. But the crux of the matter is teamwork. अगर टीम में काम है, तो आप successful होंगे. अगर आप टीम के पार्ट नहीं हो and you want to walk your own way, then God help you. No company wants people who are not good team workers. So team is the key word. Always remember that, and that's very very important. बॉस को स्टिल्स ले लेना बीच में. बॉस एक तो स्टिल्स ले लेना बीच में जब भी आप ठीक. So टीम अप्रोच की बातें जब आप करते हैं, टीम्स आर पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ. यू आर अ मेंबर ऑफ फैमिली टीम, स्टाफ टीम, हेल्थ केयर कम्युनिटी टीम्स, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया. सो टीम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी है. द मल्टी पाकिस्तानी, फिलिपिनो, वियतनामीज, थाई, ये सब एक कैटेगरी में माने जाते हैं और सब भाई भाई बनते रहते हैं वहां पे. सो वंस you are outside the boundaries of your country, then अगर वहां पे फैमिली फीलिंग आ सकती है, दैट यूनिटी फीलिंग आ सकती है, वो टीम वर्क आ सकता है, तो भैया फिर जब कॉर्पोरेट पे काम कर रहे हो तो क्यों नहीं आ सकता? एंड यू हैव टू बी देयर. अच्छा, इंडिया अपने आप में इतनी डिवर्स कंट्री, इतना बड़ा कंट्री है, चैलेंजेस आर न्यूमरस. आप आईसीआईसीआई बैंक ले लो, एक ब्रांच दिल्ली में है, एक चेन्नई में है, तीसरी वेस्ट बंगाल में है. और अगर आपको तीनों की कोऑर्डिनेशन करनी है फॉर गिविंग सम लोन टू सम बिग ऑर्गेनाइजेशन, आप चैलेंज समझ सकते हो. इट इज नॉट इजी, बट द कॉमन थिंग इज वी आर एम्प्लॉइज ऑफ आईसीआईसीआई एंड वी हैव टू वर्क एज अ टीम. और जब तक वो फीलिंग नहीं आती है तब तक काम होगी नहीं. दो क्लर्क्स हैं आपस में काम, दो अकाउंटेंट्स हैं आपस में, अच्छी टीम वर्क ओके. The clerk has to work with the manager. The manager has worked with the vice president. Vice president works with the president, and the clerk has also to work with the president. तो lateral and horizontal हर तरह से आपको vertical और horizontal teams में काम करना पड़ता है. It is not कि बस मेरा बॉस ये बॉस मैं तो इसी को रिपोर्ट करता हूँ. इसके बाद can you say that मैं तो अपने मम्मी पापा को जानता हूँ, मुझे ताऊ जी का नहीं पता, वो जी कौन है मैं जानता नहीं, मासी जी तो I just don't know. Can you live like this in a family? नहीं ना. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, there may be GMs, there may be vice presidents, there may be senior managers of various teams. कोई अकाउंटिंग का है, कोई HR का है,
कोई मार्केटिंग का है, कोई एडवर्टाइजिंग का, प्रमोशन का है, कोई सोशल मीडिया हैंडल करता है, बट यू हैव टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन अलॉन्ग देम। तो वहीं पे वो टीम स्पिरिट आती है। मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, आप सॉल्व करोगे, आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैं सॉल्व करूंगा, एंड दैट यूनिटी विल कम, राइट। तो जब आप टीम वर्क की बात करते हो तो क्या चीजें आपको बेनिफिट देती हैं? You know, staff meetings, agendas, sufficient time should be there. Job description बड़ी clear होनी चाहिए. Trust, courtesy and loyalty should be there. Respect for others, in spite of professional differences should be there. मैं GM हूँ, मैं तुम्हें कुछ समझता नहीं. तुम वाइस प्रेसिडेंट हो गए अपने घर में, ऐसे काम नहीं चल सकते. You have to work as one team, as part of that core team. You know, HR वाली अपने काम करेंगे, मार्केटिंग वाले अपना काम करेंगे, लॉजिस्टिक्स वाले अपना काम करेंगे, तभी जाके वो सक्सेस स्टोरी बनती है। फिर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग अदर्स प्रोग्राम्स, एग्रीइंग अबाउट प्रायोरिटीज, सर्कुलेशन ऑफ पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन, वो ऑफिस में हो, फैमिली में हो, कॉर्पोरेट में हो, एवरीवेयर देयर इज अ टीम इन्वॉल्वड एंड देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम अ टीम वर्क। आप सोचो बॉस मैं अकेले माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा, नहीं चढ़ सकता। और जब मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने की बात कर रहा हूं, मैं फिजिकली तुम्हें नहीं कह रहा हूं माउंट एवरेस्ट चढ़ने को, जिंदगी का हर टास्क माउंट एवरेस्ट है तुम्हारे लिए। हाउ कैन यू टेक अ मेट्रो टू रीच है? रेज योर हैंड। कल मेट्रो बंद है, कैसे पहुंचोगे? बस लोगे, ऑटो लोगे, पापा से गाड़ी मांगोगे, बाइक से मोटरसाइकिल मांगोगे? ये क्या है? टीम है। कहीं ना कहीं तो बस एक टीम वर्क है। पूरा देश चलाना भी एक टीम वर्क। दिल्ली में पूरी गवर्नमेंट चलाना दिल्ली गवर्नमेंट का काम है। मोदी जी को पूरा देश चलाना, यानी जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, जितने गवर्नर हैं, जितने फंक्शनरी जितने आईएएस ऑफिसर हैं, उन सबको टीम बना के चलना है। फिर यूनाइटेड नेशंस है, उनका टास्क और बड़ा है, उनको सारे देशों को मिला के चलना है। सो दीज थिंग्स हैपन ओनली वंस वी वर्क एज अ टीम। हाँ, कुछ दिलों की दूरियां हो सकती हैं, कुछ पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, बट दैट डजंट मैटर, वी हैव टू राइज अबव दैट। आज भाई ने मेरी जीन्स पहन ली, मैं गुस्से में आ गया, होता है कई बार, मेरे साथ क्यों है, तुम्हारे साथ क्यों है? लेकिन क्या वो तुम्हारा भाई नहीं रहता क्या उस दिन के बाद? शाम को फिर आइसक्रीम खाते हुए बैठे? तो momentary conflicts will always be there in organizations also, in family also, in your colony also, but then you have to learn to rise above that, right? Point clear? आगे चलें? अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। अभी तो अच्छी बातें कर रहे थे, अभी कुछ ऐसी भी दिक्कतें भी आती हैं। डिसलॉयल्टी, दो लोग काम करते ही नहीं टीम, उसको भी हैंडल करना पड़ेगा, प्यार से समझाना पड़ेगा, थोड़ा टाइट भी करना पड़ेगा, थोड़ा डांटना भी पड़ेगा, थोड़ी पनिशमेंट भी शायद देनी पड़ेगी, बिकॉज कॉमन पर्पस तो कॉमन पर्पस है बॉस। आज मेट्रो ने सब कुछ रेडी कर दिया आपको घर से आपके इंस्टीट्यूट लाने के लिए, लेकिन ड्राइवर कह रहा है बॉस कुछ भी है नहीं, मैं तो आज गाड़ी चलाऊंगा ही। तो पूरी जो मेट्रो की ऑर्गेनाइजेशन है उस समय फेलियर पे आ जाएगी। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन। तो कैन दे अफोर्ड दैट? उसको समझाना पड़ेगा, भाई तेरी क्या दिक्कत है, और तेरी दिक्कत डिस्कस कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, वो एडमेंट हो जाए, कोई बात नहीं बेटा तू बैठ, हम दूसरा ड्राइवर रखते हैं। अब ये थोड़ी ना उस दिन के ब्लू लाइन बंद कर देते हैं, नहीं हो सकता ना। सो बैकअप्स के बैकअप्स बनाने पड़ते हैं हर टीम के अंदर। अगर किसी कारणवश एक इंसान नहीं आ पाता है, सो समवन एल्स टेक्स ओवर, ये भी टीम वर्क। देन यू नो सम पीपल हैव पुअर जॉब एटीट्यूड्स, कितना भी समझा लो, कितना भी बता लो, वो काम करेंगे। Then you have to change the environment for that person, or you have to change the person। या तो बेटा तू बदल जा, और या फिर हम तेरे को बदल दें। तो वो सेकंड कंडीशन बहुत खराब होती है। इससे पहले कि वो कंडीशन आए, लेट्स टॉक इट ओवर एंड लेट्स चेंज द वर्क एटीट्यूड। देन एक और चीज है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन फेलो वर्कर्स, खुद पे विश्वास और टीम में विश्वास। A general is as good as his army। जनरल साहब खुद में जंग नहीं जीत सकते, नीचे जो लड़ रहे होते हैं उनकी बहुत जरूरत है। अगर उनको खाना नहीं मिला तो जनरल भी खाना नहीं खाते, कह रहे हो पहले मेरे फौजियों को खाना दो, मैं कल खा लूंगा। वो स्पिरिट अगर होगी तो फौजी भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। कर्नल साहब बैठ के बटर चिकन खा रहे हैं और फौजियों को खाना नहीं मिला,
वो डिसलॉयल आर्मी हो जाएगी, और ऐसा किसी भी वर्ल्ड में नहीं होता, किसी भी कंट्री में नहीं होता। A good general is one who leads from the front. आपने कितनी बार देखा होगा young colonels, young majors गोली खा के मरते हैं, because they are leading from the front. They are taught कि बॉस टीम तभी तक तुम्हारे साथ रहेगी अगर तुम आगे, तू आगे ना, गोली तू खा ले। वो कहेगा अच्छा, मतलब कर्नल बनने के लिए, नाम लेने के लिए तुम हो, गोली खाने के लिए हम हैं। ऐसे नहीं होता। You have to work as a team. कभी अपनी फैमिली सिचुएशन में देख लो, whenever there is something, either you look forward to your mother or your father or both, दोनों बैक सीट ले ले कि भाई तू कर ले, मेरे बस की नहीं, तुम्हारे हाथ पैर खुल जाए। Because a family unit is also a team unit and you work together. तो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है टीम बिल्डिंग का। तो बिलीव इन टीम, अपने टीम में बिलीव करना बहुत जरूरी है। टीम मेंबर्स को बिलीव करना है अपने लीडर में, और लीडर को बिलीव करना है अपनी टीम में। फिर रिसोर्सेज हर जगह लिमिटेड होती है, घर में भी रिसोर्सेज लिमिटेड है, कॉर्पोरेट में लिमिटेड है। आपने एक नया सोप लॉन्च करना है पैन इंडिया बेसिस पे, आपको एक बजट मिला 5 करोड़ रुपए, आप कह रहे सर 5 करोड़ में तो नहीं होगा सर, मुझे तो 15 से 20 करोड़ चाहिए। अरे भाई 15 से 20 करोड़ तो कंपनी बिक जाएगी। हमने तो अभी नया एक साबुन लॉन्च करना है, जब वो बिकना शुरू हो जाएगा, मार्केट में कुछ रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, फिर तेरा बजट बढ़ाएंगे। बोले नहीं सर, जब 20 करोड़ होगा तभी लॉन्च करेंगे। बोले तुम कल से बताना भाई, जय श्री राम। बिकॉज यू कांट रन अ कंपनी लाइक दैट, बिकॉज रिसोर्सेज की कमी हमेशा होगी, कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में, फैमिलीज में। अगर रिसोर्सेज की कमी ना होती तो हम सारे लोग इसमें ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे होते या हार्वर्ड में होते, नहीं है ना, बिकॉज everyone has limitations and there's nothing wrong with it. We all have limitations, but we should know how to work with those limitations and excel. मतलब सिर्फ काम नहीं करना है, नाम भी करना है, and वो तभी हो सकता है जब आप एक टीम में काम करते हैं, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन के काम पूरे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, लेंथ ऑफ मीटिंग, लोकेशन ऑफ मीटिंग्स, एलोकेशन रिसोर्सेज एंड लीडरशिप रिक्वायरमेंट्स। एक इंसान को तुम मैनेजर की सीट पे बिठा दो और बोलो तू कल से मैनेजर है, तो क्या मैनेजर बन जाएगा? हर इंसान लीडर बनने के लायक है या नहीं है, ये एक इवैल्यूएशन करेगा। अगर नहीं है तो फिर उसको कुछ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और आप सोचो कितनी कोऑर्डिनेशन होगी, कितनी टीम एफर्ट होगा उसके अंदर। हर बर्ड अपने हिसाब से चलता रहता है, कोई रशिया पहुंच जाता, कोई वियतनाम पहुंच जाता, कोई कहीं और पहुंच जाता। उनमें भी तो कुछ स्किल सेट चाहिए, कुछ सेंस ऑफ डायरेक्शन चाहिए, तभी तो पहुंच। बहुत हजारों साल से हर साल आते हैं। आप समझ लो बात को। एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, हमारा पॉल्यूशन हो रही है, और बहुत सी चीजें आज दिक्कतें आ रही हैं। जंगल्स, उनके नेस्टिंग फील्ड्स खत्म हो रहे हैं, बट उसके बाहर राज कर सकते, इसलिए यहाँ पे आते हैं। और फिर जब यहाँ पे ठंडा मौसम होता है, फिर वापस किसी और जगह जाते हैं। सो वो आपने एक बर्ड का नाम सुना जिसको गीज बोलते हैं, डक फैमिली का होता है जैसे। तो वो किस तरह से चलते हैं, तो जो गीज होती है ना, वी फॉर्मेशन में फ्लाई करती है। The whole flock, increases the flight efficiency by 71%. अगर एक बर्ड आगे है और बाकी सारे वी फॉर्मेशन उसके पीछे चलते हैं, ये उनका बेसिक रूल है। Lesson number 1: sharing the same direction and working as a team gets us to the destination quicker and easier by helping ourselves to accomplishments are greater. तो आपको कुछ भी accomplish करने के लिए एक टीम के साथ चलना पड़ेगा। फ्लाई भी करना है तो टीम के साथ। आप तो पढ़े लिखे समझदार हो, MBA हो, वो तो अनपढ़ बर्ड्स हैं जो बोल भी नहीं सकते, शोर भी नहीं मचा सकते, हेल्प भी नहीं मांग सकते। वो सिर्फ अपनी सिक्स सेंस से चलते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन चलते एक पर्टिकुलर पैटर्न में है। कभी रेक्टेंगल में नहीं चलेंगे, कभी ट्रायंगल में नहीं चलेंगे, वो वी फॉर्मेशन में चलेंगे। नेक्स्ट, when a goose leaves the formation for whatever reason, he feels the resistance of the air and difficulty in flying alone. वो अकेला नहीं हो सकता, तो क्या करेगा? Then he quickly comes back to the formation to take advantage of the flock's power in front of him. क्योंकि जब आप एक स्ट्रेंथ के साथ एक टीम की तरह चल रहे हो,
तो एक अलग नहीं चल सकता, वो भी साथ ही में चलेगा, तभी उसको ईज ऑफ फ्लाइंग हो। Lesson number 2, by staying in tune with and united beside those who are going in the same direction, the effort will be less. It will be easier and pleasing to reach the goals, and everyone will be inclined to accept and give help. टीम के साथ रहोगे तो सब हेल्प करेंगे, अकेले रहोगे तो बहुत मुश्किल। नेक्स्ट, when a leader, gets tired, वो एक लीडर है, रशिया से लेके सूरत तक, गुजरात तक, वही लीडर नहीं रह सकता। लीडर्स भी चेंज होने पड़ेंगे, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। 16,000 किलोमीटर फ्लाई करके आ रहे हैं, तो 16,000 किलोमीटर इज नॉट अ स्मॉल डिस्टेंस, तो एक लीडर से काम नहीं कर सकता। तो थोड़ी देर के बाद 6,000 किलोमीटर के बाद वो लीडर पीछे चला जाता है और एक नया लीडर बन जाता है, एंड ही लीड्स। फिर जब वो थक जाता है, वो पीछे आ जाता है, another one leads. So everyone gets a chance to lead the team. कल जो तुम कॉर्पोरेट्स में काम करोगे, इनिशियली लोअर लेवल पे आओगे, फिर मिडिल लेवल पे आओगे, फिर सीनियर लेवल पे आओगे, टॉप लेवल पे कल पहुंच जाओगे। 5-7 साल में you will be at the middle and within 10 years you will be at the top level. लेकिन टॉप लेवल पे चेंजेस भी होते रहते हैं। कभी तो मार्केटिंग हेड करोगे, कभी सेल्स हेड करोगे, कभी पैन इंडिया ऑपरेशन हेड करोगे, कभी लॉजिस्टिक्स हेड करोगे, बिकॉज जहां जहां जरूरत होगी वहां पे एक लीडर को भेजा जाएगा। Lesson number 3, to share the leadership. There must be mutual respect between us all the time, sharing the hardest problem and task, gathering our abilities and combining our faculties, talents and resources. आज LG को 10,000 टीवी सप्लाई करने हैं फरीदाबाद में, और उनकी लॉजिस्टिक कंपनी में स्ट्राइक हो गई फॉर व्हाट एवर। एक्सटर्नल कंपनी है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तो क्या आज 10,000 टीवी का टारगेट खत्म हो जाएगा? आप इमीडिएटली अपनी एक कोर टीम को मीटिंग में बुलाओगे, भैया 15 वेंडर इकट्ठे करो, 20 वेंडर इकट्ठे करो, 100 ट्रक कहीं से भी लेके आओ, ये 10,000 टीवी आज सप्लाई होने हैं तो होने हैं। आपके पास एक लिस्ट ऑफ बैकअप वेंडर्स होगी, बैकअप ट्रक ड्राइवर्स और ट्रक वेंडर्स होगी, आप उनको कांटेक्ट करोगे, एक हर 3 ट्रक के ऊपर टीम लीडर बनाओगे, भैया 3 ट्रक तुम देखोगे, 3 ट्रक तुम। आगे जो काम कोई बाहर वाली कंपनी करती थी, आज हो सकता है नेक्स्ट 3 दिन के लिए तुम्हें खुद करना पड़ेगा उसको। 3 फौजी हैं, उनको टास्क दिया गया, बॉस उस सामने वाले दुश्मन के एक ठिकाने को उड़ाना है। रास्ते में एक फौजी को गोली लगी, बच्चे सिर्फ 2, तो क्या वापस आ जाएंगे? नहीं आ सकते ना, दे हैव टू कंप्लीट द टास्क। तो 3 का काम तो 2 करेंगे, हो सकता है 2 में से 1 ही रह जाए, तो 1 ही करेगा, वापस नहीं आएगा बॉस। शहीद होना मंजूर है बॉस, लेकिन कमिंग बैक इज नॉट अलाउड। ये टीम स्पिरिट थी। देन मर गए, अभी से सुबह 11 बजे मर चुके, क्या बात है भाई? हाउ द जोश? हाय सर। तो यू हैव टू बी एनर्जेटिक, एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए। 2-3 पीछे सोए हुए तो जाके तेरा पता नहीं क्या हुआ, उनको समझ ही नहीं आया, हो जाए कोई बात नहीं, ये भी टीम स्पिरिट। लेसन नंबर 4, when there is courage and encouragement, the progress is greater. A timely word of encouragement always motivates and helps the strengtheners. It produces the best of benefits. तो 2 तरह के टीम लीडर होते हैं, एक हमेशा झाड़ता रहेगा, डांटता रहेगा, गाली देता रहेगा। दूसरी तरह होते हैं, कभी प्यार भी करेगा, कभी डांटेगा। Like your mommy, she will encourage you also. Sometimes she will give you tight one also. जब टाइट वन देगी तो कमरे में, सबके सामने नहीं, और जब इंकरेज करेगी तो 10 लोगों के सामने। तो जब आप इज्जत देते हो, प्रोत्साहन देते हो, तो पब्लिक में देते हो, और जब डांटते हो, डपटते हो, तो अलग कमरे में। इस चीज को रिवर्स कर दूंगा तो बैड लीडरशिप हो जाएगी। और इजी वे टू रिमेंबर हाउ अ मदर लुक्स आफ्टर अ चाइल्ड, देन दैट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ लीडरशिप। इसी तरह से गुड मैनेजर और बैड मैनेजर, मैनेजर सारे हैं बट उनका वर्क स्टाइल डिफरेंट। तो ट्राई टू नॉट बिकम अ मैनेजर, ट्राई टू बिकम अ लीडर। लीडर वो होता है, अच्छा एक और डेफिनेशन समझ लो, मैनेजर होता है जो मैनेज करता है, लीडर जो होता है वो लीड करता है। बहुत बड़ा फर्क है दोनों, समझ रहे हो? बॉस वो पीछे कुछ चल रहा है क्या पीपीटी में, अलग वहां पे कोने में,
या मोबाइल में चल रहा है कुछ ना, आ जाओ इधर दिखा दो, हम भी देख लेते हैं, नहीं तो बंद कर दो उसको। सो ऑलवेज ट्राई टू ये भी टीम वर्क है दोस्त, बी पार्ट ऑफ द टीम। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर दैट एवरीवन वर्क्स हैप्पीली इन योर टीम। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम दूर करो, उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो फिर जब तुम्हारा बुरा टाइम आएगा ना, वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा। लेकिन जब उसका बुरा टाइम था और तुमने उसको लात मारी थी ना बॉस, ही विल वेट कि बेटा तेरा टाइम आए फिर तुझको बता। तो इससे कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं जाती। एक सक्सेसफुल लीडर वो होता है जो फ्रंट से लीड करता है। एक मूवी आई है मेजर मुनि कृष्ण, सुना है मेजर मूवी के बारे में? He was the only black hat commando who lost his life in 26/11. Right? ये वो कमांडो था जो चाहता पीछे हो जाता तो उसकी टीम के 3-4 लोग शहीद हो गए होते। He took the bullets on his chest and saved all his subordinates. इससे बढ़िया मैं एग्जांपल तुम्हें नहीं दे सकता बॉस इंडिया में टीम लीडरशिप का। ये मूवी देख लेना, मेरे को याद कर लेना। 100% स्टोरी यही है, because I have read his entire story in depth. तो उस तरह से आपको एक लीडरशिप स्किल्स चाहिए होगी। सो अगर एक गूस बीमार हो गई तो उसको लुक आफ्टर करने के लिए एक गीस पीछे चली जाती है उसके साथ। जब वो ठीक हो जाती है वो वापस फॉर्मेशन। If we bond together and support each other, if we make a true spirit of teamwork, regardless of our differences, we can rise to meet our challenges. If we understand the real value of friendship, and if we are aware of the feeling of sharing, life will be easier and passing of years are more fulfilling. Right? Clear? अच्छा, अब we'll move on to short corporate story, because corporate story से बहुत सी चीजें आपको easily समझ आ जाती हैं। तो आप सबने पोलो खाई, राइट? तो पेपरमिंट है पोलो, एंड पोलो केम टू इंडिया ऑलमोस्ट 20 years बैक। तब उसको नेस्ले ब्रांड लेके आया था, और नेस्ले इंडिया में तब बहुत सी चीजें बनाता था। इंडिया में कॉफी बनाता था, मैगी बनाता था, केचप बनाता था, लेकिन पोलो फर्स्ट टाइम लेके आया। द ओनली बिग कॉम्पिटिटर दे हैड वाज अ ब्रांड कॉल्ड मिंटो। तो एक पेपरमिंट मिलती थी मिंटो के नाम से, जिसको बेकमैन्स करके कंपनी थी वो बनाती थी। तो अब पोलो में होल होता है, आपको मालूम। तो उन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग शुरू की मिंट विद होल, और मिंटो ने कहना शुरू किया मिंट विदाउट अ होल, और ये आपस में लड़ना शुरू हो गया। बोर्ड्स में, होर्डिंग्स में, टीवी में, प्रिंट मीडिया में, हर जगह पे मिंट विद अ होल, मिंट विदाउट अ होल, मिंट विद अ होल, मिंट विदाउट अ होल। बिकॉज़ वो कहते थे बहुत सांस लेते हो तो हवा उसमें से अंदर जाती ठंडी, यू गेट अ वेरी गुड फीलिंग इन योर थ्रोट। और मिंटो कहता था बॉस ये तो पूरे पैसे लेके आधी गोली देते तुमको, हम तो पूरी दे। तो दोनों की लड़ाई बहुत बढ़िया चल रही। इसका नेट रिजल्ट क्या हुआ? 8,000 crore market became a 18,000 crore market in 3 years. टोटल मिल्क मार्केट 8,000 करोड़ की थी इंडिया में, जो 3 साल में 18,000 करोड़ की होगी। ये वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ कि 3 साल में मार्केट इतनी बड़ी मल्टीप्लाई कर। अभी तक स्टोरी शुरू नहीं होती। शाहरुख खान क्या कहता है? स्टोरी अभी बाकी है। सो नाउ आई विल टेल यू द मेन स्टोरी। ना तो उनकी टीम में किसी को पता था, ना उनके एम्प्लॉयज को पता था, ना उनके पार्टनर्स को पता था, ना डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता था, ना मिंटो के ना पोलो के मिंटो और पोलो एक ही फैक्ट्री में बन रहे थे। जोर का झटका, आई धीरे से। दिस इज द मैजिक। क्योंकि मैंने फिर बता रहा हूं, जब मैंने शुरू में बताया था नेस्ले इंडिया बहुत कुछ बनाता था, कॉफी बनाता था, मैगी बनाता था, केचप बनाता था, लेकिन उनके पास पेपरमिंट की फैक्ट्री नहीं थी। तो अपने कंपटीशन के पास गए, भैया तेरे पास स्पेयर कैपेसिटी, कहता है बहुत सारी। कहता फिर एक काम करते हैं, दोस्त हाथ मिलाते हैं ना, तू किसी को बताइए ना मैं किसी को बताऊंगा, तेरी फैक्ट्री में माल बनेगा, तू मिंटो के नाम से बना, मैं पोलो के नाम से बनाऊंगा, और पूरे देश में बनाएंगे, और पूरे देश में एडवर्टाइजिंग करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, मार्केट तेरी भी बढ़ेगी, मेरी बढ़ेगी, दोनों लड़ेंगे मार्केट में। वहां पे हम दोस्त नहीं, वहां पे घोर दुश्मन, अंदर से हाथ मिला रखता। ये होती सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स टीम वर्क। 3 साल तक ऐसा घनिष्ठ टीम वर्क था कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर तक को नहीं पता चला कि माल एक ही फैक्ट्री में से आ रहा है। ये तो 3 साल के बाद जब उन्होंने मुंह खोला कि हाँ भैया एक फैक्ट्री का माल है, तब जाके लोगों ने माथा पीटा। तब तक मार्केट 18,000 करोड़ की बन चुकी थी।
So this is the value of teamwork. I wanted to give you an example to show you कि जरूरी नहीं है कि बस एक टीम में जो लोग काम करते हैं वही टीम वर्क है, कभी कभी दुश्मनों से भी हाथ मिलाना पड़ता है, कॉम्पिटिटर से भी हाथ मिलाना पड़ता है। एंड इट हैपेंस, आपके पास अगर घर में कोई टेप रिकॉर्डर हो पुराना, या एक प्रिंटर हो या कंप्यूटर हो, उसको खोल डालो एक दिन, कोई पुराना पड़ा हो, तो उसमें आपको 10 कंपनियों के पार्ट्स मिलेंगे। उसमें पैनासोनिक का भी मिलेगा, उसमें सीमेंस का भी मिलेगा, उसमें आपको फेराइट किसी कंपनी में मिलेगा, रेजिस्टेंस किसी कंपनी मिलेगी, और किसी कंपनी, 1000 चीजें होंगी, लेकिन ब्रांड ऊपर HCL लिखा होगा या माइक्रोसॉफ्ट लिखा होगा या कुछ भी लिखा होगा, IBM लिखा होगा, लेकिन सारे पार्ट्स IBM नहीं बनाता, सारे पार्ट्स माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाता। आज अमेज़न के सारे वेंडर चले हैं तो अमेज़न अपने आप में एक बोर्ड है बॉस, और कुछ नहीं है, क्योंकि अमेज़न की कोई फैक्ट्री नहीं है जहां माल बनता है। फैक्ट्री मेरी, तुम्हारी, मैम की, भाई साहब की, इन सब लोगों की है। So a company is as good as its partners and as valuable as the relationship is. जितनी बढ़िया टीम बिल्डिंग आप रखोगे उतना बढ़िया आप कामयाब होगे। आइए सर, और बहुत सारे एनिमल्स हैं, हर किसी का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जो कमाल का काम ये करते हैं ना बॉस, आपने कभी चींटी खड़ी देखी है जिंदगी? वो स्थिर है ही नहीं। She doesn't know when to stop. She will keep on moving. Human beings भी रेस्ट लेते हैं, लाइन भी रेस्ट लेता है, गोट भी रेस्ट लेती है, हॉर्स भी रेस्ट लेता है। ये एक ऐसा जीव है। बटरफ्लाई भी कई बार आप देखोगे आराम से एक फूल में बैठी हुई है, मक्खी भी बैठती है, चींटी को बस अगर कहीं बैठी तो मर चुकी है। She will never stop. उसकी जो टीम स्पिरिट है ना वो कमाल की होती है, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो एंड्स नेवर क्विट, वो कभी ये नहीं कहती बॉस कि मैं हार गई या मेरा काम खत्म हो गया। इफ दे आर हेडेड समवेयर यू ट्राई टू स्टॉप देम, विल फाइंड अनदर वे। चींटियों की लाइन चल रही है, तुम उनके आगे एक ईंट रख दो, वो दूसरी तरफ निकल जाएंगे, एक और ईंट रख दो, वो तीसरी तरफ निकल जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं, और दे विल फाइंड देयर, दे क्लाइम ओवर, दे क्लाइम अंडर, दे क्लाइम अराउंड, वो अपना रास्ता निकालेंगे। लेसन दैट टू नेवर क्विट, लुकिंग फॉर अ वे टू गो वेयर यू आर सपोज्ड टू गो। तुम्हें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है या तुम्हें किचन में एक गैस तक पहुंचना है, चींटियों के लिए वो एक ही काम है। तेरे लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ना, उसके लिए जमीन से लेके वो गैस तक पहुंचना ही, क्योंकि उसको मीठा दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर कुछ मीठा बन रहा है, उसको खुशबू आ गई, वो अपने टारगेट तक पहुंचना चाहता है। चींटी एक ऐसा जानवर है जो सर्दियों में समझती है गर्मियां हैं और गर्मियों में समझती है सर्दियां। इसको मेटाफोरिकली समझ लो क्यों। ऐसा कोई पागल नहीं कि जिसको ठंड में ठंडी लग रही है, गर्मी गर्मी लग रही है, लेकिन वो कहते हैं बॉस सीधी सी बात है, एंड्स विल कीप ऑन गैदरिंग देयर विंटर फूड इन द मिडल ऑफ समर। उसके पता है विंटर में खाना नहीं मिलने वाला, तो मुझे समझ नहीं खाना इकट्ठा करना है, तो पूरी जान लगा के पूरी टीम वर्क से वो खाना इकट्ठा करती है। विंटर्स इस टाइम व्हेन मूविंग आउट विल बी डिफिकल्ट फ्रॉम देम, तो अपनी जो जगह जहां रहती है वहीं रहेगी, लेकिन उसके लिए खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो वो खाना इकट्ठा करते हैं। And you got to think rocks as you enjoy the sand and sun. जब गर्मी आएगी तब सोचें। And lesson it's important to be realistic, think ahead। एक टीम में आज क्या हो रहा है उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है, लेकिन आगे क्या हो वो ज्यादा जरूरी है। अडानीज अंबानीज आज इतने बड़े अगर बने हैं तो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद की प्लानिंग करते हैं। अंबानीज वर इन द ऑयल बिजनेस, लेकिन उनको ये समझ आ रहा था कि और 15-20 साल के बाद ऑयल डिप्लीट करना है, खत्म हो रहा है, फिर क्या करेंगे, तो वो रिटेल में आ गए। लेकिन रिटेल में एक रात में तो नहीं आए, पिछले 15 साल से रिटेल में काम कर रहे हैं। फिर उनको ये समझ आया कि रिटेल में कामयाब होने के लिए या किसी बिजनेस कामयाब होने के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, तो टेलीकॉम में आ गए। अगर ऑयल की मिरर इमेज करोगे ना, मिरर इमेज, तो जियो आएगा, JIO। ऑयल को उल्टा लिख लो मिरर इमेज में। तो उनको यह समझ आ गया था कि डेटा इज द न्यू ऑयल। जब तक आप ऑयल में इन्वेस्ट कर रहे थे, अब ऑयल का फ्यूचर नहीं है, अब डेटा का फ्यूचर है, तो जियो में जाओ, रिटेल में जाओ और कामों में जाओ। सो यू हैव टू थिंक अहेड एज अ टीम एंड थिंक समर और विंटर। पूरी विंटर में सोचती है यहां से गर्मी आप आई कल आई, क्योंकि जब तक वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होंगे, हाय मर गया, ठंड में मर गया, मरी जाओ। लेकिन अगर ये सोचोगे हर दिन बॉस कल गर्मी आने ही वाली है,
मैं इससे निकल जाऊंगा, मैं इससे बच जाऊंगा, अगर वो थॉट प्रोसेस है, देन यू विल सर्वाइव। कैंसर सर्वाइवर से मिले हो कभी? जो सर्वाइव करता है ना, वो सिर्फ अपने मेंटल एप्टीट्यूड से करता है, क्योंकि कैंसर को अंदर से अपना काम पूरा करना है, दवाइयां अपना काम पूरा कर देंगे। डॉक्टर कहता है बेटा तू और कुछ नहीं कर सकता, तू इसको ठंडा रख, think that you are okay and you will be okay, think you are sick and you will die tomorrow, simple as that। मेंटली हार नहीं माननी, और ये टीम पे भी काम करता है। टीम जितनी एजाइल रहेगी उतनी ही ज्यादा सक्सेसफुल होगी। ऑल दैट यू कैन पॉसिबली कैन, हर चीज जो तुम्हारे रिसोर्सेज में है उसको करके दिखाना है। एंड लेसन इज डू ऑल यू कैन एंड मोर, जितना कर सकते हो वो तो करना ही है, उसके ज्यादा भी करना है, बिकॉज किसी भी टीम की प्रोग्रेस उसी से होगी, राइट। तो 4 पार्ट फिलॉसफी जो मैंने हैंड फिलॉसफी बताई आपको, फर्स्ट इज नेवर गिव अप, सेकंड इज लुक अहेड, थर्ड इज स्टे पॉजिटिव एंड डू ऑल यू कैन। डोंट बी इनकाउंट बाय हिस्ट्री, जस्ट गो आउट एंड डू समथिंग वंडरफुल, सिंपल एंड स्ट्रेट। तुम्हारी सबकी फैमिली में मैं गारंटी कर सकता हूं तुमसे पहले किसी ने एमबीए नहीं की थी, आपको बड़ा भाई ने तो बात दूसरी, तुमसे पिछली जनरेशन ने नहीं की थी, तुम फर्स्ट टाइम एमबीए करने जा रहे हो। अब वो तुम्हारे हाथ में है जादू की छड़ी, उस एमबीए का तुम क्या बनाना चाहते हो? यू वांट टू बी द लायन और यू वांट टू बी द मंकी, द चॉइस इज योर्स, राइट। और वो अकेले नहीं कर पाओगे बॉस, उसमें टीम चाहिए। ओके, आइए सर, आपको बार बार कर करते हैं। Christmas may be a couple weeks away. ओके, आज हम स्वीट्स की बात कर रहे हैं। तो एक, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक मीठी सी गोली आती, उसको बोलते थे रोला कोला, और वो मजेदार पॉपिंग्स की तरह होती थी और मुंह में डालो तो बिल्कुल कोला का टेस्ट आता। 15-20 साल अवेलेबल रही, उसके बाद आप सब ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा, तो किसी स्टेज पे जाके प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में जाता है और वैनिश कर जाता है, खत्म हो जाता है। तो नए प्रोडक्ट्स आ गए। ये कंपनी जो थी, जो बनाती थी इसको, उसका नाम था पार्ले। तो पार्ले ने उस प्रोडक्ट को बनाना बंद कर दिया और प्रोडक्ट्स लेके आ गए, बात खत्म हो गई। ये कोविड से पहले, 2 साल पहले की बात है, किसी ने ट्विटर पे एक ट्वीट किया, मेरे जैसा कोई पुरातन जमाने का था, आई मिस माई रोला कोला डेज, भाई मुझे रोला कोला याद आता। और उसने टैग कर दिया पार्ले को। पार्ले वाज द कंपनी जो बनाती थी। इमीडिएटली क्या हुआ कि पार्ले ने रिस्पॉन्स दिया that if we get 10,000 retweets, we will consider relaunching रोला कोला। मैसेज क्लियर? अच्छा, आज की डेट में क्या है, किसी भी प्रोडक्ट लॉन्च करने में 5 से 7 करोड़ रुपए लगते हैं, पूरी टीम लगती है, मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, ये सब लोग, सोशल मीडिया टीम, ये सब मिलके एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। इट कॉस्ट टू 5 to 7 करोड़। आप बोलोगे सर 7 करोड़ किस लिए चाहिए? सपोज रोला कोला को लॉन्च करना है, रीलॉन्च करना है, भाई प्रोडक्ट तो डेड हो चुका, वापस तुम्हारी जनरेशन में तुमने देखा नहीं, मेरी जनरेशन वाले भूल चुके, तो प्रैक्टिकली तो नया प्रोडक्ट ही हो गया ना, वापस धरती पे लाने के लिए उसको। सबसे पहले जो सबसे बड़ी कॉस्ट होती है वो ब्रांड एम्बेसडर की होती है। करीना भी आएंगी, कटरीना भी आएंगी, शाहरुख भी आएंगे, विरुष्का भी आएंगे, व्हाटएवर यू हायर, सचिन भी आएगा, जो आपका ब्रांड एम्बेसडर हो, 3 से 4 करोड़ रुपया सीधा बोलेगा, 4 करोड़। तो 7 करोड़ के बचे में से 4 करोड़ रुपये भाई बहन ले लेना, बात खत्म। बाकी आपको प्रिंट मीडिया भी करना है, होर्डिंग भी लगानी है, सोशल मीडिया भी करना है, फेसबुक भी करना है, ये सब चीजें फ्री में नहीं है। फिर आपको ब्लॉगर्स भी लेने हैं, फिर आपको इन्फ्लुएंसर भी लेने हैं, ये सब चीजों में आपके 3 करोड़ का जो टोटल कितना हुआ 7। अब आई ब्रांड लॉन्च की बारी, रोला। तो इन्होंने एक मैसेज ट्वीट किया किसी भाई साहब ने, आई मिस माय रोला कोला डेज। जवाब आया, इफ वी गेट 10,000 रीट्वीट्स वी विल कंसीडर रीलॉन्चिंग ऑफ रोला। सच मानिए 1 महीने में 1 लाख रीट्वीट्स आए, 1 lakh retweets were there. I miss my rola cola days.
मजे की बात क्या है बॉस, भारत के सिर्फ 2% लोग शायद ट्विटर पे होंगे, शायद उससे भी कम, और उसमें सिर्फ 1 लाख लोग थे जो रोला कोला मिस कर रहे थे। तो सोचो 98% पॉपुलेशन में कितने लोग रोला कोला को मिस कर रहे हैं, आप समझ रहे सैंपल साइज। तो पार्ले को समझ आ गया बॉस, पब्लिक रेडी है, प्रोडक्ट लॉन्च किया जा सकता है, विद इन 2 मंथ्स प्रोडक्ट लॉन्च हो गया। कहने वाले कहते हैं अरे सर असली कहानी आपको पता नहीं है, ये ना पहले वाला ट्वीट भी पार्ले ने किया था। मैं कहता हूं अगर पार्ले ने खुद किया था, इससे बड़ी कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। उन्होंने हींग लगेगा फिटकरी स्वाद दिया है चोखा, चवन्नी नहीं खर्ची बॉस, ट्विटर इज फ्री, 1 रुपया भी नहीं खर्च होता ट्विटर पे, और उन्होंने पूरी मार्केट स्टडी कर डाली इंडिया की कि कितने लोग तैयार हैं इस प्रोडक्ट को। सपोज कोई ना लिखता, रीट्वीट करते, भूल जाते। यहां तो 1 लाख लोग तो ट्विटर पे आ गए थे बॉस लिखने के लिए। दे सेव्ड 7 करोड़। इससे बड़ी मार्केटिंग केस स्टडी नहीं आ जाएगी। अहमदाबाद की केस स्टडी बन चुकी है जो मैंने आपको नटशेल में बता दी। एक ट्वीट से उन्होंने पूरी मार्केट स्टडी कर ली। दिस इज ट्रू टीम वर्क। इसमें एडवर्टाइजिंग भी थी, प्रमोशन भी थी, आपकी पीआर टीम भी लगी हुई थी, सब लोग लगे थे, लेकिन दे वर जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स। किसी भी रिवर में या कहीं पे भी आप जाते हो तो पहले एक बार एक पैर अंदर रख के देखते हो ना, गहरा कितना चेक करते हो। सो दिस इज बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग यू नो व्हिच यू हैव नॉट अंडरस्टूड, यू मोस्ट वेलकम टू आस्क एनीथिंग। कोई कंसेप्ट जो आपको समझ नहीं आ रहा, is there any question which you want to ask? Okay then, thank you so much. I hope you enjoyed. Thank you. I'm not responsible for video. आप आ जाएंगे तो इसको गेट आ जाएगा मैम। इधर है मुझे स्पॉट। So it was at the time of welcome. Since you came early, don't thank you so much. Before wasting your much of time, so very late.